Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. We discussed cardiac arrhythmias in previous lectures, two lectures, and today I'm going to talk about the current of injury, how some damage to the heart is shown on ECG. But before that, one ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. क्या ईमान वालो ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम, अपने आबा व अजदाद को, अपने आबा को और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ। कब? अगर इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह दें या उससे ज्यादा मोहब्बत करें, यानी काफिर हो, ईमान के मुकाबले में कुफ्र को वो तरजीह दें। अगर तुम्हारे भाई हों या बाप हों, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, उनको दोस्त मत बनाओ। वमन यतवल्लहु मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो भी उनसे मोहब्बत रखेगा वो फिर गुनाहगार होगा। काफिरों से मोहब्बत तो गुनाहगार ही है। तो अगर आपके आबा व अजदाद या भाई या रिश्तेदार कोई भी हो, अगर वो दीन के मुखालिफ हैं, कुफ्र पर हैं, कुफ्र के मोहब्बत करने वाले हैं और आपके दीन इस्लाम के मुखालिफ हैं, उस वक्त तो बहुत से भाई, एक भाई मुसलमान है, एक मुशरिकीन में से है, बाप मुसलमान है और बेटा काफिर है, या बेटा मुसलमान हो गया बाप काफिर है, तो उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। अब भी एप्लीकेबल है कि अगर आपको दीन पे हटाने वाला कोई भी हो, दूर करने वाला हो, चाहे आपके माँ बाप हैं या भाई हैं या दोस्त हैं या कोई भी है, उनको दोस्त नहीं बनाना। तो अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ दे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ज़िंदगी कौन सी है, वो दीनी ज़िंदगी है। दीन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे रिश्ते नाते या बाकी चीज़ें वो दीन के मुकाबले में हमारे सामने उनकी कोई हैसियत होनी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we are going to talk about current of injury. This is normal recording of ECG. Current of injury, here I am going. It will be shown this is T wave, and after that this is TP interval. This is TP interval. And this is also at the same level, isoelectric line is TP interval is isoelectric line, and PQ or PR segment is isoelectric line, and initial part of this ST segment is also isoelectric line where the QRS complex, this point is isoelectric line. And then after T wave, this is again TP interval is this one, T and P interval, this is the TP interval, this is isoelectric line. So we will see shifting of this isoelectric line if there is some current. If there is some injury, there will be shifting of the isoelectric line. We will see that. So this is normal ECG. Before we can discuss that, we should know how the ECG, something we have talked about in the previous lecture, but here we are summing up. This is a partially normal current is flowing, normal cardiac impulse is passing through this septum, and this is the stage. That is partially depolarized. Formation of QRS complex, normal formation of QRS complex. That is, the heart is partially depolarized. This is the vector at this stage, that at this instant, and this will be represented, this vector will be represented by these 3 points. This at this instant in lead 1, this recording that will be shown here, and in lead 2 current will be shown, this much current will be shown in the lead 2 and this much current is shown in lead 3. We can calculate it from here, and when the current has increased, we see that this is at, and all the 3 leads it has increased, and this is lead 4, then current and then this is returning back, magnitude of current is reducing, something like that. And at stage 4, almost whole of the ventricles are depolarized, only this part is left, and this is reverse direction where current is flowing, and the negative wave is recorded in lead 2 and lead 3, and this is the complete depolarization of the heart when it touches again the isoelectric line. This is how
at different instant. Vectrocardiogram भी हमने देखा था, ये भी हमने पहले देखी थी. How ECG is recorded at different instances. That एक इंस्टेंस पर इतना वेक्टर है, डिफरेंट लीड्स में कितनी रिप्रेजेंटेशन है, और देन कंप्लीट डिपोलराइजेशन in all the leads. This needle has come to, recording needle has come to the isoelectric line again. That's how it is recorded. So current of injury, when there is some damage to the myocardium, damage may be by mechanical, some injury to the heart, mechanical injury, accident में कोई injure हो गया, some part of the myocardium has damage, or infection हो गया, that also may cause the damage to the heart, but this is common ischemia. That is myocardial infarction. The most common cause is this ischemia. That is reduction in the blood supply to some part of the muscle causes damage of the myocardium. So that is damaged area from where the current of injury will be initiated. Damaged area cannot remain in resting membrane potential, because for the maintenance of resting membrane potential, energy, oxygen, deficient nutrients are required. That is an active process. Maintenance of resting membrane potential, you must have studied membrane physiology. This maintenance of resting membrane potential is a energy expenditure is required to maintain this resting membrane potential. When this muscle cell is damaged, so this damaged area cannot maintain resting membrane potential. So it is not in resting membrane potential, it is depolarized. Damaged area remains depolarized. It is not polarized. It is depolarized. It becomes positive or it becomes negative. It becomes zero potential or negative. This is depolarization if it goes to... So it is damaged area is depolarized. ये बात आपने याद रखनी है कि जो जगह डैमेज है, that is depolarized even in resting state, because this area cannot maintain the resting membrane potential because of deficiency of nutrition or some damage to the heart, that muscle. So current will be flowing from this depolarized area. Current will be generated from this depolarization. What is cardiac impulse? This is wave of depolarization. So resting membrane potential के वक्त भी current is being produced. When heart is in complete resting condition, there should be no current, but still that in damaged area is producing current and it will be flowing in some direction. This is negative area. Current will be flowing from this negative area to all positive areas. Whole of the myocardium is positive with the rest, compared to this damaged area. So a current always flows from this deeper damaged area, this depolarized area to normal polarized area. This is current of injury. This, for example, partially depolarized, ये वही diagram है जो पिछली दिखाई थी. Partially depolarized, some area is depolarized. This is normal, ये normal से मैंने उठाया. Say it is abnormal, this is the current of injury. हम फर्ज कर ले. Partially depolarized, ये तो impulse से depolarized हुआ है ना. अगर डैमेज से भी डिपोलराइज होगा तो बात तो यही होगी. सो दिस एरिया इज डिपोलराइज, करंट इज फ्लोइंग, इट इज बीइंग represented in different cardiac leads. It will be represented. So this is partially depolarized heart अगर ये हो रहा है, and this is completely depolarized heart. Completely depolarized जब होगा, whole of the myocardium is depolarized. उसमें तो पता ही नहीं है. Damaged area is also depolarized and whole of the myocardium is also depolarized. So क्या होगा? Whole of the myocardium is depolarized. So it will be an isoelectric point. There will be no current. So that's why this in all the three leads it has gone to the recording that is showing the isoelectric line. ECG is showing isoelectric line. ये तो हमने बात. This point where completely depolarized heart, completely depolarized heart, this point after the completion of QRS complex, heart is completely depolarized. This point at isoelectric line is known as J point. It's a J point, the exact point at which the wave of depolarization just completes its passage through the heart, which occurs at the end of QRS complex. This point is J point.
completely depolarized at isoelectric line पर आएगा. So at this point all parts of the ventricles are depolarized. ये हम देख के आएंगे नॉर्मल रिकॉर्डिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स. यहाँ से ST सेगमेंट शुरू होता है, यहाँ से आगे फिर डिपोलराइजेशन ऑफ T वेव का आगे काम शुरू होगा. दिस इज कंप्लीट QRS कॉम्प्लेक्स की रिकॉर्डिंग जहाँ कंप्लीट होती है, दैट इज J पॉइंट. ये देखें, दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ECG. ये मैंने खुद हाथ से ड्रा किया, इसी जरा टेढ़ा मेढ़ा है. दिस इज रिकॉर्डिंग ऑफ ECG. these are the wave, P wave, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, P वेव. दिस इज TP इंटरवल. ये जो TP इंटरवल में बार बार जिक्र आएगा आगे, TP इंटरवल. दिस इज TP इंटरवल. दिस इज आल्सो एट द सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. TP इंटरवल बोलूंगा, बट दैट आल्सो इंक्लूड द ST सेगमेंट. not ST या PQ segment या PR segment which is isoelectric. ये दोनों isoelectric हैं. TP मैं बोलूंगा, this is बात ये दोनों at the same level, P level. So this is normal ECG. J point, this is J point. When QRS complex is completing, it is S wave is touching the isoelectric line which is at the same level. This is isoelectric line, this is also isoelectric line. They are both same level. इस वे same level. ये J point है. Now ये वो J point दूसरी complex में भी आ गया. This is normal ECG. Normal ECG ये आपकी किताब की डायग्राम है और इस पे जो पॉइंट मैंने ड्रा कर दिया है. This is J point. When QRS complex is completing, this is J point. Isoelectric line. This is isoelectric. This is isoelectric. This is DP segment or this is the PR segment. So both are isoelectric line. PR interval तो P wave भी होते हैं. This is PQ segment. Interval नहीं. तो दिस इज तो दोनों एक लेवल पर हैं, ये याद रखना है आपने. दैट इज बोथ टीपी बोलो या ये बोलो टीपी, बोथ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर एट द सेम लेवल. दे आर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नॉर्मल. बट सो दिस इज J पॉइंट, तो वो हमने देखे. दिस इज J पॉइंट. This is J point. J point is isoelectric line in completely depolarized heart. ये हमने देख लिया, पक्का कर लिया कि J point कब है. It is isoelectric point. It is isoelectric line पर वो point है, but the QRS complex completes. वो जब complete होता है. Now damage to the damage की पहले बात कर रहे हैं. Resting membrane potential उसमें maintain नहीं हो सकती है. If there is damage and damaged area remains depolarized and current always flows from this damaged area to the rest of the heart. कब? When it is completely polarized. जब resting state में है, it should be at isoelectric line. It should be the TP interval area. It will be TP interval, isoelectric line. When it is completely polarized state, resting state में, अभी impulse पैदा ही नहीं हुआ. पैदा होगा तो फिर P wave पैदा होगी और फिर उसके बाद वो wave आएगा. TP interval की टाइम पर है. This is known as, अगर इस damage area है, damage area में, completely polarized area में current will be flowing. So क्या मतलब है? TP interval will not be at isoelectric line. When it is complete, current always flows on the pathological area. In some pathological area exists when whole of the heart is polarized state. That means it is positive. No, damage area is negative. तो डैमेज एरिया से करंट फ्लो कर रही होगी, तो इट विल बी, कब करंट वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? टीपी सेगमेंट है ना, तो टीपी सेगमेंट विल नॉट बी आइसोइलेक्ट्रिक. करंट जो फ्लो कर रही है, आइसोइलेक्ट्रिक तो तब होगा जब जीरो करंट, तब होगी जब आइसोइलेक्ट्रिक पे जीरो करंट नहीं है, तो ये इट विल बी अवे फ्रॉम द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जब करंट फ्लो कर रही है. तो दिस शिफ्ट ऑफ द टीपी इंटरवल कब है? होल ऑफ द हार्ट इज पोलराइज, लेकिन एक जगह से डीपोलराइज है, तो फिर टीपी इंटरवल आइसोइलेक्ट्रिक पे नहीं होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा. करंट विल बी शोन. सो दिस इज करंट ऑफ इंजरी. इसको आगे हम रिकॉर्ड करते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा. से दिस इज टीपी इंटरवल का टाइम है. दैट इज होल ऑफ द हार्ट इज पोलराइज स्टेट.
there is no current, there should be no current, but this area is damaged, injured area is this base of the heart की तरफ, this area is damaged, तो करंट किधर जा रही होगी, it is going away. अब इसको वेक्टर बनाए ना, उसको प्लेस इट ऑन दोज जो हेक्सागोनल हमने डायग्राम रखी हुई है उस पे आप इसको प्लेस करेंगे. इसके अगर हम इसको शो करते हैं, डैमेज एरिया इन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल नियर द बेस ऑफ द हार्ट, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम दिस पैथोलॉजिकल depolarized area to the normal polar positive area, and even when whole of the heart has polarized state is TP segment of ECG. TP segment isoelectric पर नहीं होगा, करंट शो कर रहा होगा, ये आगे डायग्राम में आ जाएगा. तो TP segment will not be at isoelectric line. इसको आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे तब होता जब कोई करंट ना होती, वो जीरो पोटेंशियल वाली बात है, जीरो कोई करंट नहीं. लेकिन अगर डैमेज एरिया है, देयर इज ऑलवेज अ करंट, डिपोलराइज एरिया से करंट आ रही है, तो टीपी सेगमेंट विल नॉट बी एट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, इट विल बी अप अबव और बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, डिपेंडिंग अपॉन क्या हम उसको करते हैं. तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज द हाउ द करंट ऑफ इंजरी इज शोन. ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीपी सेगमेंट, मैं फिलहाल टीपी सेगमेंट बोल रहा हूं समझाने के लिए. यस, इट इज टीपी सेगमेंट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आमतौर पर कार्डियोलॉजिस्ट या ईसीजी देखते हुए हम बोलते हैं इसको कुछ और है, वो आगे जाके मैं बताता हूं. तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीपी सेगमेंट व्हेन कंप्लीटली रेस्टिंग कंडीशन में. इट इज टीपी सेगमेंट इज नॉट ऑन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. अब ये देखें, ये डैमेज एरिया है, this damage area, this is the vector when it should be at isoelectric line होना चाहिए, लेकिन because of this damage, this time this current should be shown, it should not be an isoelectric line. इस वेक्टर को ड्रा करें ना तो डिफरेंट तीनों लीड्स पर, चेस्ट लीड्स पर, सॉरी लिम्ब लीड, बाइपोलर लिम्ब लीड पर उसके वेक्टर्स के हम कंपोनेंट वेक्टर करें, तो लीड वन में कंपोनेंट वेक्टर इज ऑन नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, करंट तो इधर जाना चाहिए, ये इधर जा रहा है. नॉर्मली कार्डियक एक्सिस इधर होता है, ये ऑपोजिट जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है. इसका कंपोनेंट वेक्टर इन लीड वन इज this much on the negative side, this is lead 1, ये लाइन यहाँ पे होगी. It is not an isoelectric line, it is below the isoelectric line. लीड 2 में इसी का कंपोनेंट लीड 2 में कंपोनेंट इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, लेकिन थोड़ा सा करंट है, तो लीड 2 में भी आप देखें, जैसे लीड 2 इसका भी देखें, इट इज अबव द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, और तीसरे में भी इट इज अबव दी, क्योंकि लीड 3 में भी पॉजिटिव शो हो रहा है, इट इज दी अबव दी. सो लीड 1 में नेगेटिव नीचे आया हुआ है टीपी इंटरवल, और लीड 2 में ऊपर है, लीड 3 में भी ऊपर है. क्यों? करंट इज फ्लोइंग. ये जीरो पे आ नहीं सकता है कि ऑलवेज करंट इज फ्लोइंग. जीरो तो तब होता कि यहां से भी कोई करंट ना होती, कंप्लीट रेस्टिंग कंडीशन में होती. तो कंप्लीट रेस्टिंग कंडीशन में भी करंट फ्लो हो रही है, तो टीपी इंटरवल, ये टीपी इनिशियल पार्ट ऑफ दी, दिस इज द टीपी इंटरवल. अब इस पे रिकॉर्ड करें वही जो पहली 2 स्लाइडों में मैंने दिखाया कि रिकॉर्डिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. अब इस पर इंपल्स ट्रेवल कर रहा है. अब इम्पल्स कैसे, जैसे सेगमेंट, ये दरमियान में डीपोलराइज, ये तो डैमेज एरिया की डीपोलराइजेशन है, ये नॉर्मल इम्पल्स की डीपोलराइजेशन है, दोनों की ये नेगेटिव हो गए दोनों एरिया. अब जो वेक्टर पैदा हो रहा है वो ये है, उसको रिकॉर्ड करें तो उसकी लीड्स ऐसे होता है. ये लीड 1 में यहां आ गया, लीड 2 में यहां, लीड 2 में यहां आ गया, लीड 3 में यहां आ गया. अब इसको और रिकॉर्ड करें, दिस करंट इज स्प्रेडिंग, नॉर्मल जो कार्डियक इंपल्स है वो स्प्रेड कर रहा है, वो एरिया तो डिपोलराइज है, वो स्प्रेड कर रहा है, वेक्टर ऐसा हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग ये यूं रिकॉर्ड हो गया, कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया. दिस इज कंप्लीटली डिपोलराइज. अब सारे एरिया बराबर हो गए, दैट इज damage area is already depolarized, now whole of the heart is completely depolarized. This is now, अब रिकॉर्डिंग होगी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे. अब सारी जगहों पे आप देखें, तीनों में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे पहुंच गए. दिस इज जे पॉइंट, ये जे लिखा हुआ है, दिस इज, ये जो लाइन आई है दिस इज नॉट लाइन, ये जे पॉइंट है. जे पॉइंट ये तीनों में इस वक्त when whole of the heart is completely depolarized, this is at J point. So J point तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर है,
लेकिन टीपी सेगमेंट हम जब ईसीजी में देखेंगे, ये ईसीजी टीपी सेगमेंट यहां था इसमें, अब ये जे पॉइंट है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ जे पॉइंट एज कंपेयर टू टीपी सेगमेंट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहां से शुरू हुआ था, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होना चाहिए था, वो तो ऊपर थी, अब आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस जे पॉइंट एंड दी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से शुरू होने वाला पहला वाला पोर्शन, पीक्यू सेगमेंट या पीटीपी सेगमेंट बोले, वो दोनों एक ही आइसोइलेक्ट्रिक, एक ही जैसे होते हैं। तो इसमें भी जे पॉइंट यहां पे है, टीपी सेगमेंट यहां पे है, इसमें टीपी सेगमेंट यहां पे है, जे पॉइंट ऊपर है। तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ जे पॉइंट एज कंपेयर टू दिस, दोनों एक जगह पे नहीं है, जैसे टीपी सेगमेंट एंड जे पॉइंट ऊपर चला गया या नीचे आ गया। तो हम आमतौर पर ईसीजी में हम इसको देख रहे होते हैं, हालांकि डिस्प्लेस ये हुआ है, टीपी सेगमेंट डिस्प्लेस होता है, लेकिन आसानी से देखने के लिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद देखते हैं कि इस सेगमेंट से ऊपर है या नीचे है, तो वी कॉल इट एज एसटी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन। हालांकि देयर इज दी current of injury is shown in the form of displacement of TP segment, displacement of the PQ segment या PR segment जिसको बोलते हैं, यानी QRS कॉम्प्लेक्स से पहले वाला जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये वो लाइन है। एंड दूसरी लाइन जे पॉइंट तो यहाँ पे आना चाहिए नॉर्मली ईसीजी में, इसमें जे पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। इसका क्या मतलब है, ये डिप्रेस था, लेकिन इसको हम बोलते हैं एसटी एलिवेशन। हालांकि इट इज डिप्रेशन ऑफ टीपी सेगमेंट, लेकिन बोलते हैं हम उसको एसटी एलिवेशन है, ईसीजी में देखना आसान है। तो एसटी एलिवेशन, अब मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करता हूं, करंट ऑफ इंजरी इज शोन इन द फॉर्म ऑफ एसटी डिप्रेशन और एसटी एलिवेशन। हालांकि ओरिजिनली वो है क्या, दैट इज द डिप्रेशन और एलिवेशन ऑफ द टीपी सेगमेंट और पीक्यू सेगमेंट, उसकी एलिवेशन है। करंट ऑफ इंजरी उधर शो होती है, व्हेन कंप्लीट देयर इज नो डिपोलराइजेशन थ्रू आउट द हार्ट, फिर भी करंट शो हो रही है, वो दैट सेगमेंट इज नॉट ऑन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। तो टीपी सेगमेंट या पीक्यू सेगमेंट इज डिस्प्लेस अप और बिलो द लाइन, डिपेंडिंग अपॉन हम वो रिकॉर्ड करेंगे वेक्टर कैसे शो करता है, बिलो द लाइन है या अबव द लाइन है, बट टीपी सेगमेंट इज, लेकिन हम इसको फाइनली बोलते कैसे हैं, एसटी डिप्रेशन और एसटी एलिवेशन। यानी टीपी सेगमेंट का डिप्रेशन को हम एसटी एलिवेशन बोलते हैं, टीपी सेगमेंट के ऊपर जाने को हम एसटी डिप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि एसटी तो जे पॉइंट तो हमेशा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर होता है। सो एसटी डिप्रेशन और एसटी एलिवेशन शोज द करंट ऑफ इंजरी। अब आसान हो गया, एसटी डिप्रेशन और एसटी एलिवेशन शोज द करंट ऑफ इंजरी। ये नॉर्मल है, क्या मतलब है, ये वाला जो जगह है इट शुड बी, ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इफ करंट ऑफ इंजरी में ये नीचे आ जाता है या ऊपर आ जाता है, हम इसको नहीं देखते, हम देखते इस जे पॉइंट को कि ये अगर नीचे आया हुआ है तो एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड, जे पॉइंट इज अबव द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अगर ये नॉर्मली ये ऊपर आया हुआ है तो एसटी डिप्रेशन इज बिलो दिस लाइन, सो इसको हम कहते हैं एसटी डिप्रेशन। होती तो चेंज टीपी इंटरवल किया, लेकिन हम उसको बोलते हैं उसको एसटी डिप्रेशन और एसटी एलिवेशन की फॉर्म में। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इफ देयर इज सम करंट ऑफ इंजरी, एसटी सेगमेंट विल बी एलिवेटेड और एसटी सेगमेंट विल बी डिप्रेस्ड। आगे हम ईसीजी में देखेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन शोज दिस इज मैंने ड्रा किया हुआ, दिस इज एन ईसीजी रिकॉर्डिंग। इसका देखें, अपरेंटली हमें क्या लग रहा है, दिस इज द टीपी इंटरवल, जे पॉइंट यहां पे है, जे पॉइंट यहां पे है, ये नीचे है, लेकिन इसको मैं बोलूंगा क्या कि ये ऊपर है। ये हमारी कन्वेंशन है कि हम बोलते जे पॉइंट के हिसाब से हैं, हालांकि असली बात ये हुआ है कि ये नीचे है। दिस PQ segment is below the isol, ये है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ये रेड वन, दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन और दिस शुड बी हियर, लेकिन देयर इज करंट ऑफ इंजरी शो हो रही है, दिस इज नॉट ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, दिस इज नॉट ऑन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, कंप्लीटली डिपोलराइज्ड। हम पी वेव को भूल जाते हैं ना, क्योंकि वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन बोल रहे होते हैं कंप्लीट, तो हम इस लाइन को कहते हैं दिस लाइन, दिस शुड बी एट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, बट बिकॉज ऑफ द डैमेज करंट ऑफ इंजरी इट इज बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। तो जब इट कंप्लीट तो जे पॉइंट तो यहां पे आता है, जे पॉइंट यहां पे आता है, इट इज अबव दिस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, अपेरेंटली लगता ही है, हालांकि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन ये रेड वन है, ये वाली ये जे पॉइंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एलिवेटेड, एसटी एलिवेशन,
दिस इज नोन एज ST एलिवेशन, दिस इज शोइंग द करंट ऑफ इंजरी। ये पॉइंट है। अब ये दूसरी लाइन अगर हम ड्रा करें तो ये लगता ये है कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन ये है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन अपरेंटली ये लगती है, ये वाली आमतौर पर हमारे ज़हन में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है ना। तो इस लाइन से अबव है, ये TP लाइन से ST सेगमेंट अबव है। दिस इज शोइंग अस दी करंट ऑफ इंजरी कि इस लाइन से TP सेगमेंट या इसको PQ सेगमेंट भी बोलते हैं, PQ सेगमेंट, ये जैसे क्यूब है PQ सेगमेंट, TP इसलिए बोलता हूँ, ये T और P के दरमियान जो सेगमेंट है ये उसी लेवल पर ये भी इस PQ सेगमेंट से J पॉइंट ऊपर है, ST सेगमेंट जहां से शुरू होता है वो ऊपर है, इसको कहते हैं ST एलिवेशन। ये एक लीड में है, ST डिप्रेशन भी होते हैं, आगे हम देखेंगे। ST किसी लीड में ये नीचे भी होगा, ST डिप्रेशन इससे नीचे होगा, वो भी करंट ऑफ इंजरी है। एलिवेटेड आर डिप्रेस्ड, इस लाइन से ऊपर हो या नीचे हो, दिस इज द करंट ऑफ इंजरी। ये देखें TP सेगमेंट में बार बार बोल रहा हूं, इज व्हेन हार्ट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड and it is below the isoelectric line even before the QRS complex. It is below the isoelectric line. मैं फिर वापस जाता हूं आपको बताने के लिए। This is below the isoelectric line. Isoelectric line तो ये है। This is below the isoelectric line. TP segment is below the isoelectric line. आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे क्यों है? करंट ऑफ इंजरी की वजह से। हालांकि हार्ट में कोई इंपल्स पैदा नहीं हो रहा, करंट ऑफ इंजरी की वजह से ये नीचे शो हो रहा है। तो इट इज बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। आगे जाते तो इट इज बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इवन बिफोर द QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्टेड। कंप्लीट QRS कॉम्प्लेक्स J पॉइंट पे जब कंप्लीट होगी तो J पॉइंट इज ऑन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, इसका मतलब है इसे ऊपर होगा। ये बिलो था, वो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर है, तो दैट विल बी अबव। सो दिस इज एलिवेटेड कंपेयर टू TP सेगमेंट PR एंड वर्स। इसको हम कहते हैं ST एलिवेशन। ST एलिवेशन इज शोइंग अस द करंट ऑफ इंजरी और ST डिप्रेशन विल बी शोइंग अस द करंट ऑफ इंजरी। किसी लीड में डिप्रेशन आएगी, किसी में, हमने पहले रिकॉर्ड में देखी थी, 2 लीड में डिप्रेशन आ रही थी, 1 लीड में एलिवेशन आ रही थी। So after T wave, current of the injury reappears. T wave के बाद दोबारा वो TP इंटरवल आ जाएगा। T wave के बाद, so J point, the exact point at which the wave of the depolarization, at this point all the parts of the ventricle depolarize, ये पहले हम बात कर चुके हैं। अब ये करंट ऑफ इंजरी शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, जीरो लाइन तो ये है, लेकिन TP इंटरवल इज हेयर, TP इंटरवल इज हेयर, J पॉइंट तो इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर आएगा। अब इस लीड में क्या कहना, ST सेगमेंट इज डिप्रेस्ड। हालांकि असली हुआ यह कि TP सेगमेंट ऊपर है, लेकिन अपरेंटली हमें नजर, हम तो इसको देख रहे होते हैं ना, अब ECG को देख रहे होते हैं, तो दिस इज बिलो, इस लाइन से ये नीचे है, दिस इज ST डिप्रेशन। इसमें भी आप देखें, दिस इज ST एलिवेशन, TP इंटरवल ये है, TP इंटरवल यहाँ पे है, और दिस इज ST एलिवेशन, यहां से ऊपर चला गया, दिस इज ST एलिवेशन। दैट्स हाउ ST डिप्रेशन और ST एलिवेशन, J पॉइंट ऊपर या J पॉइंट नीचे, इसके मुकाबले में, इसके TP इंटरवल के मुकाबले में या PQ सेगमेंट के मुकाबले में, अगर वो ऊपर है या नीचे है, दिस विल शो द करंट ऑफ इंजरी। डैमेज एरिया शो करेगा कि वहां पे हार्ट में कुछ डैमेज है। सो दैट इज हाउ द करंट ऑफ इंजरी इज रिगार्डेड। तो इसको हम जरा आगे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, कल के लेक्चर में हम अप्लाई करेंगे। उसमें हम देखेंगे डिफरेंट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में व्हेन देयर इज डैमेज, तो कौन कौन सी लीड में ST एलिवेशन या डिप्रेशन क्या होता है, बाकी वेव्स को क्या होता है, बाकी वेव्स को भी फर्क पड़ेगा, वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। बेसिक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ST एलिवेशन और ST डिप्रेशन शोज करंट ऑफ इंजरी। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला ECG एंड सम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और कुछ रिकवरी फ्रॉम दी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और वो इंशाल्लाह वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा कार्डियोलॉजी में। फिर हम इंशाल्लाह सर्कुलेशन शुरू करेंगे। होप यू आर फॉलोइंग मी। इफ यू हैव गॉट सम क्वेरी क्वेश्चन, ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अगर इसको शेयर करेंगे तो आपकी तरफ से ये सदका जारिया होगा। मेरी तरफ से सदका जारिया तो ये हो गया कि मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, आप जो इसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इसको मैं आपको पहुंचा रहा हूं, ये मेरा सदका जारिया। आप इसको बाकी लोगों में शेयर करेंगे, मेरा भी सदका जारिया होगा बाकी में जाने का, लेकिन आपका शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक हमें इस पे समझ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे। थैंक यू।